Hey guys, what's up? Kya chal? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and in this video, I'm going to summarize place of supply chapter very simply and the most effective manner. As you all know that this chapter is very important in your examination and minimum 6 to 8 marks का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में आएगा. 100% तय है. इस चैप्टर में जनरली स्टूडेंट्स को प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में थोड़ी डिफिकल्टी होती है. दे गेट टेन टू कंफ्यूज्ड कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई. कभी कोई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है, किसी में लोकेशन ऑफ सप्लायर है, किसी में लोकेशन ऑफ इवेंट है. तो टुडे आई एम गोइंग टू मेक दिस सिंपलर for you, and this PDF, one page of PDF which I have made for all of you, this will definitely help बिफोर एग्जामिनेशन. तो ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा अलॉन्ग विद द वीडियो लिंक. डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. आइए आसानी से इसको समझते हैं. प्लेस ऑफ सप्लाई इन वेरी लेस टाइम सो दैट आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑफ योर्स. सबसे पहले यू शुड बी नोइंग दैट प्लेस ऑफ सप्लाई is divided into 4 sections: section 10, 11, 12 and 13 of IGST Act. 10, 11 is pretty simple, so I'm not going into detail. 10 is basically place of supply of goods other than import export, and section 11 is place of supply of goods which is imported into or exported from India. Mainly we are going to discuss on section number 12 and section number 13. Section number 12 will talk about the place of supply of services where location of supplier and location of recipient both are in India. जब supplier and recipient दोनों की location India में है तो section 12 लगेगा, और section 13 लगेगा where location of supplier और location of recipient is in India. मतलब दोनों में से एक का location India में है और एक का location India के बाहर है, तो फिर section number 13 of IGST Act लगेगा. तो आइए सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 12, दैट इज सर्विसेज का सेक्शन नंबर 12. तो आप ध्यान दोगे मैंने इसमें कुछ कलर कॉन्ट्रास्ट कोडिंग यूज किया है. वो कलर मैंने इंटेंशनली यूज किया है, ऐसे है वही कोई भी कलर कहीं पे भी लगाया नहीं है, ठीक है ना. तो आप एक देखोगे कि मैंने यहाँ पर क्या क्या कॉलम्स लिया है. एक सेक्शन नंबर जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम में सब सेक्शंस लर्न करना, बट यू प्लीज गो विथ सेक्शन नंबर्स 12, 13 याद होना चाहिए. Nature of the services. Now I have divided section 12 into two parts. One is single rule place of supply and one is registration specific place of supply. यानी कि registration specific place of supply means that whether the supply is made to registered person or unregistered person will be considered. But in single rule place of supply, whether you made supply to registered person or you make supply to unregistered person, everything will be same. But in some services, you need to check whether the supply is made to registered person, then the answer will be different. And if the supply is made to unregistered person, the answer will be different. तो supply registered person को किया जा रहा है कि unregistered person को किया जा रहा है, दोनों के केस में आंसर बड़ा सिंपल अलग अलग है. तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 12 एप्लीकेबल होगा. आइदर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बोथ द लोकेशंस आर इन इंडिया. तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 12 IGST एक्ट लग रहा है. यहाँ पे लॉस एंड लॉर दोनों इंडिया में है. तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन अगर सप्लाई करें तो अलग लोकेशन है, और अगर अनरजिस्टर्ड को है तो अलग लोकेशन है. बट दिस इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू दीज सर्विसेज. कौन कौन सा? Training and performance appraisal services, transportation of goods services, transportation of passenger service, insurance service and event organizing services including ancillary services and sponsorship services. तो ये 5 सर्विसेज ऐसे हैं कि जहां पर अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करोगे तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. यानी कि अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा हूं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा. ध्यान देना, ये 5 सर्विसेज में चाहे वो ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स हो, इंश्योरेंस सर्विसेज हो, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग एंसिलरी सर्विसेज एंड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हो, तो यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया जाएगा, क्वेश्चन पढ़ के दिख जाएगा कि रजिस्टर्ड पर्सन ने रिसीव किया है क्या, तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लीजिएगा. और यही 5 सर्विसेज में अगर ये सप्लाई अनरजिस्टर्ड को दिया गया तो यहाँ पे आपको मोस्ट क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी होम ऑफ कंजम्पशन वाला जो लोकेशन होगा दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. जैसे कि ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल में, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज में, इफ यू आर सप्लाइंग टू अनरजिस्टर्ड पर्सन देन लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में द गुड्स लोकेशन विद द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. आप देख रहे हैं दोनों में डिवीजन हो गया. रजिस्टर्ड को कर रहे तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड को कर रहे तो लोकेशन विद द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, जिसको भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैंड ओवर किया गया दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में ध्यान देना, वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स एंड नॉट वेयर द जर्नी स्टार्टेड. मतलब जर्नी इन द सेंस की वेयर द एरोप्लेन स्टार्टेड और द रेलवे स्टार्टेड, वो लोकेशन नहीं होगा, बट वेयर द पैसेंजर
embarks on the conveyance for the continuous journey। लेकिन ये कब होगा? जब सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया जा रहा है, यानी B2C किया जा रहा है, और रजिस्टर्ड को दिया जा रहा है तो रजिस्टर्ड का लोकेशन को ही आपको प्लेस ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा। देन आती है इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज में द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। सप्लायर के रिकॉर्ड्स में जो भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज में भी सप्लाई अगर रजिस्टर्ड को किया जा रहा है तो रजिस्टर्ड का लोकेशन ले लो, नहीं तो लोकेशन ऑफ द इवेंट वेयर इट इज एक्चुअली हेल्ड। बट इफ द लोकेशन ऑफ द इवेंट इज आउटसाइड इंडिया देन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये 5 सर्विसेज याद रखिएगा। अगर B2B है तो रजिस्टर्ड का रेसिपिएंट का लोकेशन, नहीं तो अलग कोई प्लेस ऑफ सप्लाई आपको लेना पड़ेगा। अब इस 5 में से दो सर्विसेज गाइस ऐसे हैं, इस 5 में से 2 सर्विसेज ऐसे हैं जहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ये सेक्शन 13 से भी सेम है। मतलब मैं आपको एकदम साइंटिफिकली समझा रहा हूं, एकदम इजी तरीके से समझा रहा हूं, सो दैट आपके एक बार में आपके दिमाग में रिवीजन चला जाए। सर, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज, ये दोनों के केस में सेक्शन 13 अगर अप्लाई हो रहा है, यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, वन लोकेशन इज आउटसाइड इंडिया एंड वन लोकेशन इज इंडिया, देन ये दो सर्विसेज में सेम प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जो अपने सेक्शन 12 में देखे थे इन केस ऑफ B2C। यानी प्लेस वेयर द पैसेंजर embarks on the conveyance for the continuous journey सेक्शन 13 में होगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, एंड फॉर इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज द इवेंट लोकेशन विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड ये आपका माना जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सेम होगा सेक्शन 13 में भी, यानी 5 सर्विसेज में 2 सर्विसेज सेक्शन 13 में भी आपको सेम आंसर देगा। नाउ लेट्स कम टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेक्शन नंबर 12। ये सर्विसेज ऐसे हैं जहां पे सिंगल रूल प्लेस ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होगा, यानी इवन इफ इट इज सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन तो भी सेम होगा, और अगर B2C यानी अनरजिस्टर्ड को सप्लाई किया जा रहा है तो भी सेम आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो इमोल प्रॉपर्टी के केस में वेयर द सर्विसेज आर इन रिलेशन टू इमोल प्रॉपर्टी देन द लोकेशन ऑफ द इमोल प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर इमोल प्रॉपर्टी की लोकेशन इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा। ठीक है, तो ये वाला प्लेस ऑफ सप्लाई कब है? जब आप इमोल प्रॉपर्टी सर्विसेज सेक्शन 12 का बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, केटरिंग सर्विसेज में लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इवेंट एडमिशन यानी एंट्री फी, अगर कोई बात हो रही है एंट्री फी विद रिस्पेक्ट टू एनी इवेंट, तो लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क इज सिचुएटेड विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। Supplies of services on board a conveyance will be the location of the scheduled, first scheduled point, ध्यान देना, passenger transportation services में where the passenger is embarking for the journey, that is the place of supply. But supplies on board a conveyance में the first scheduled point of departure of that conveyance, irrespective whether the passenger has boarded the journey or not, that is not relevant, but the first scheduled point of departure of that conveyance for the journey will be considered to be the place of supply, whether it is made to registered person or unregistered person. Banking services में the location of recipient if the address is available, if not available then location of supplier. Telecommunication services में guys अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप्स के नेचर के अलग अलग लोकेशन है, जैसे कि फिक्स्ड केबल, फिक्स्ड लाइन और केबल लाइन होगा तो इंस्टॉलेशन प्लेस होगा, पोस्टपेड मोबाइल इंटरनेट DTH होगा तो बिलिंग एड्रेस होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा, डज नॉट एग्जिस्ट तो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा, प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट DTH होगा तो एड्रेस ऑफ द एजेंट होगा, ऑल अदर केसेस में LOR होगा इफ एड्रेस इज अवेलेबल, और इफ एड्रेस इज नॉट अवेलेबल लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, तो अलग अलग वैरायटी में अलग अलग आपका टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज होगा तो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी ईच ऑफ द स्टेट विद द एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्टर रन डिस्प्ले। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज में हर वो लोकेशन जहां पे एडवर्टीजमेंट शो किया जा रहा है दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड को दिया कि अनरजिस्टर्ड को दिया उससे अपने को मतलब नहीं है। तो पहला 5 सर्विसेज जो हमने देखा वह रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड से आपको मतलब है। नेक्स्ट आपको ये जो 1 2 3 4 5 6 और 7 सर्विसेज ऐसे हैं जहां पे बिल्कुल भी B2B B2C से रेलेवेंट नहीं है, वो सिंगल रूल प्लेस ऑफ सप्लाई है। अब ये 5 में से हमने 2 सर्विसेज ऐसे देखा जो बिल्कुल सेक्शन 13 से सिमिलर है, और इस 7 में से हम 3 सर्विसेज ऐसे देखेंगे। मतलब आप सोचो सेक्शन 12 और 13 में 5 सर्विसेज का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बिल्कुल कॉमन है। पहला कौन सा था? पहला था सर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, फिर था इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज। अब अपने देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज। क्या देखते हैं अपने?
इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज ऐसे है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज ऐसे है, लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी कंसीडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन सेक्शन नंबर 13 के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे सेक्शन नंबर 13 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो लोकेशन होगा दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सिमिलरली सेक्शन 12 में भी ये लग रहा है, सेक्शन 13 में भी ये लग रहा है। सिमिलरली ध्यान दो, इवेंट एडमिशन सर्विसेज, तो एडमिशन टू जो इवेंट होता है वो लोकेशन ऑफ इवेंट होता है। सिमिलरली सेक्शन 13 में भी यही एप्लीकेबल होगा। और सप्लाईज ऑफ सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, सेक्शन 12 में भी वही है, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर फॉर द on the of that conveyance for the entire journey, और सेक्शन 13 में भी यही है। तो देखो 5 सर्विसेज ऐसे हैं जो सेक्शन 12 में और सेक्शन 13 का बिल्कुल सेम है। 12 में जो B2C होगा वो सेक्शन 13 होगा, और सेक्शन 13 में तो नॉर्मली B2B B2C कॉमन है, तो वही आपका सेक्शन 13 में होगा सर। एम आई क्लियर? ठीक है। देन बैंकिंग सर्विसेज, बस एक बार ध्यान रखना कि बैंकिंग सर्विसेज में अगर सेक्शन 12 लग रहा है तो एलओआर लेंगे, नहीं अगर अवेलेबल है तो एलओएस लेंगे। बट ये अगर सेक्शन 13 होता तो ये एलओएस ही लिया जाता। यानी बैंकिंग सर्विसेज अगर सप्लाई किया जा रहा है टू एनी अकाउंट होल्डर, इन दैट केस सेक्शन 13 if it is applicable, then location of supplier will be considered to be the place of supply, जो कि सेक्शन 12 में क्या है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, if address is available, if not available then location of supplier. With this we complete our place of supply section number 12. इससे जो भी मिलता जुलता 5 सर्विसेज था सेक्शन 13 से, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब सेक्शन 13 में इसके अलावा जो सेक्शन 12 में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज था, इसके अलावा सेक्शन 13 का खुद का फिजिकली जो प्रेजेंट है, जो इंडिविजुअल सर्विसेज है जो सेक्शन 12 में मेंशन नहीं है, वो क्या है सर? पहला है सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से आपके एग्जाम में रेलेवेंट है, दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। नंबर 1, सर्विसेज वेयर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड, वेयर रेसिपिएंट का फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड, एंड सर्विसेज व्हिच इज गिवन ऑन एनी पर्टिकुलर गुड्स। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज है, और यहाँ पे प्लेस वेयर योर इवेंट वेयर योर एक्चुअल सर्विसेज आर गिवन। ठीक है, प्लेस वेयर योर सॉरी प्लेस वेयर द actual services are performed will be considered to be the place of supply। लेकिन यहाँ पे भी अलग अलग caveats है, that location of the goods will be taken where the services are giving electronically। यानी मान लो अगर रिमोट लोकेशन से आपको सर्विस दिया जा रहा है, ओवर इंटरनेट आपको सर्विसेज दिया जा रहा है, ठीक है, टीम व्यूअर से आपको सर्विसेज दिया जा रहा है ऑन पर्टिकुलर गुड्स, ऑन अ पर्टिकुलर लैपटॉप और हार्डवेयर सर्विसेज, सिस्टम सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस सर्विसेज दिया जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीन से अगर सर्विसेज दिया जा रहा है तो लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। बट अगर इंपोर्टेड टेम्पोरली, इफ यू हैव इंपोर्टेड द गुड्स टेम्पोरली फॉर रिपेयर एंड एक्सपोर्टेड विदाउट एनी यूज इन इंडिया, देन लोकेशन जहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म की गई है वो नहीं मानी जाएगी। द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी सिंपल है, अगर सप्लायर इंडिया का है और रेसिपिएंट इंडिया के बाहर का है, आपने इंपोर्ट किया फॉर टेम्पररी पर्पस और फिर रेसिपिएंट को एक्सपोर्ट भी कर दिया, तो रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज आउटसाइड इंडिया। लेकिन अगर सप्लायर इंडिया के बाहर का और रेसिपिएंट इंडिया में है, रेसिपिएंट ने बाहर एक्सपोर्ट किया, आई मीन सप्लायर ने रेसिपिएंट ने बाहर एक्सपोर्ट किया, फिर उसने इंपोर्ट भी कर लिया, तो यहाँ पे रेसिपिएंट का लोकेशन जो होगा दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये आप याद रखना सेक्शन नंबर 13 का रिस्पेक्टिव प्लेस ऑफ सप्लाई। देन है ओएडा सर्विसेज। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ओएडा सर्विसेज विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट एंड दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी इंडिया इफ एनी 2 कंडीशंस आउट ऑफ द 7 नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। यानी कि सिम कार्ड इंडिया का है, बैंक इंडिया का है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जहां से पेमेंट हुआ है वो इंडिया का है, बिलिंग एड्रेस इंडिया का है, ठीक है, ये सारे आईपी एड्रेस इंडिया का है, दिस शुड बी इन इंडिया, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड दैट द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन इंडिया। अब ये 3 सर्विसेज पे फोकस करिए जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ये 3 सर्विसेज क्या है सर? एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज, एक है इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज, ठीक है, और एक है एडमिशन सर्विसेज। ये 3 सर्विसेज ऐसे हैं कि अगर ये सेक्शन 13 में दे आर बीन प्रोवाइडेड एट मोर देन वन लोकेशन, दे आर बीन प्रोवाइडेड एट मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग अ लोकेशन इन इंडिया, यानी ये अलग अलग कंट्रीज में सप्लाई किया जा रहा है इंक्लूडिंग इंडिया में, देन लोकेशन इन इंडिया विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और सिमिलरली अगर ये मोर देन वन स्टेट से सप्लाई किया जा रहा है इन इंडिया, देन लोकेशन इन each of the respective state will be considered to be the place of supply. Location in each respective state will be considered to be the place of supply. Next आता है आपका intermediary services. Intermediary services में जो location of supplier होगा that will be considered to be the place of supply, and hiring a means of transport including yacht but excluding aircraft and vessels up to 1 month, that will be in that situation location of supplier will be considered to be the place of supply. तो ये था अपना सेक्शन नंबर 13। देखिए ये चार्ट
एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप ओवरऑल गो थ्रू कर लेंगे तो जितना एग्जाम में आपके प्लेस ऑफ सप्लाईज आएंगे 5 या 6 जितना भी सर्विसेज पूछे जाएंगे, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेक्शन 12 लगेगा कि 13 लगेगा। ठीक है, इन केस ऑफ सर्विसेज देन यू हैव टू आइडेंटिफाई एलओएस क्या है, एलओआर क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि नेचर ऑफ सर्विस क्या है, और फिर आपको याद रखना है रेलिवेंट रूल क्या है, और रूल के हिसाब से जो आपका मैचिंग आंसर आएगा यू हैव टू गिव द आंसर। सिंपल है प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर गाइस, अपने अपने आप के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देते हैं बट डिफिकल्ट थिंग्स है नहीं। ये चार्ट जो पीडीएफ है मैं आपके लिए रेडी रखूंगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। सेक्शन 12 एंड 13 को सबसे ज्यादा इजीली मैंने ट्राई किया कि आप लोग के लिए सामने प्रेजेंट कर दूं कि किसमें क्या है किसमें क्या है। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा इफ यू लाइक द कंटेंट, एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट दिस चैप्टर इन मच 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 इजी मैनर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।